Hello students, welcome back to 7th English class. So students, in the previous video, we covered the first part of this chapter, 3 questions written by Leo Tolstoy. So students, let's move to its second part. Before we start, let's have a quick recap. So, once there was a king who thought that he would never fail if he knew the answers of 3 important questions. So, क्या थे वो 3 questions? First question, what is the right time to do the right things? This was the first question. And second, which people should he listen to? ये second question था. And third question is, what are the most important things should he do? So ये 3 questions थे जिनके आंसर राजा चाहता था. To find answers, the king sent his messengers throughout his kingdom. So इन questions के आंसर जाने के लिए राजा ने क्या किया कि अपने पूरे मैसेंजर्स, बहुत सारे मैसेंजर्स जो थे वो अपने पूरे राज्य में भेजे. Many wise men came to answer these questions, but each of them gave different answers. Right? The king was not satisfied with any of their answers. राजा ने बहुत सारे मैसेंजर भेजे थे, उन्होंने बहुत सारे मतलब वाइज मैन आए, बहुत सारे आंसर्स भी दिए, लेकिन उनके सबके आंसर्स डिफरेंट थे. सो जो किंग था वो उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ. Therefore, he decided to visit a hermit who was known for his wisdom. फिर उसने डिसाइड किया कि मैं एक hermit के पास जाता हूँ जो कि अपनी wisdom के लिए बहुत ही मशहूर था. When the king reached the hermit's hut, he found the hermit digging the garden beds. जब वो hermit के पास गया, पहुंचा, तो उसने क्या देखा कि hermit क्या कर रहा है कि फूलों की जो क्यारियां होती हैं उनको खोद रहा था. The hermit appeared old and weak and was working very hard. Hermit जो था वो बहुत ही ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत ही old है, weak है, लेकिन वो काम बहुत ही मेहनत कर रहा था. Seeing this, the king took the spade from the hermit and began digging the beds himself. फिर जब राजा ने देखा कि hermit जो है वो बूढ़ा है, कमजोर है, तो राजा ने क्या किया कि उससे spade ले लिया hermit से और खुद उसने क्यारियां खोदना शुरू किया. The story continues as the king wait for the hermit to answer his 3 questions. तो ये स्टोरी अभी कंटिन्यू है. अब राजा जो है वो वेट कर रहा है कि कब hermit उसके 3 क्वेश्चंस के आंसर उसको देगा. So let's start its second part. The king turned around and saw a bearded man running towards them. राजा जब पीछे मुड़ा तो उसने क्या देखा कि एक bearded man था जो कि उनकी तरफ आ रहा था. Bearded man मतलब एक दाढ़ी वाला आदमी, right? His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. और उसके जो हाथ थे उसने अपने हाथों को क्या किया हुआ था कि अपने स्टोमक, अपने पेट को उसने जोर से दबाया हुआ था, यहाँ से कि ब्लड फ्लो हो रहा था, खून बह रहा था, वहां से उसने अपने हाथों से अपने स्टोमक को प्रेस किया हुआ था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो फेंट हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. अब राजा और hermit दोनों ने क्या किया कि उसके कपड़े रिमूव किए और क्या देखा कि उसके पेट में एक बहुत ही गहरा घाव है. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. अब राजा और जो hermit था उन दोनों ने क्या किया कि उसको जो घाव था उसको हैंकरचीफ, रुमाल से, कपड़े से कवर किया, लेकिन ब्लड जो था वो रुक नहीं रहा था. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. अब राजा तब तक उसकी जख्मों पे पट्टी करता रहा जब तक कि खून बहना बंद ना हुआ हो, तब तक राजा उसके जख्मों पर पट्टी करता रहा. राइट? The man felt better and asked for something to drink. अब वो जो आदमी था उसने थोड़ा बेटर फील किया और कुछ पीने के लिए मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. तो राजा ने क्या किया कि वहां से एक फ्रेश वाटर लाया और उसको पीने के लिए दिया. By this time the sun had set and air was cool. अब उस टाइम क्या था कि सूरज भी छिप गया और हवा भी ठंडी हो गई. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब राजा ने क्या किया कि hermit की हेल्प से उसको जो wounded man था उसको क्या किया उसने hermit की हेल्प से राजा ने क्या किया कि जो wounded, जो जख्मी इंसान था उसको हट में ले गए और वहां उसको लिटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet. अब आदमी ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर दी और आराम से लेट गया. The king, tired by his walk and the work
he had done, lay down on the floor and slept through the night. अब राजा भी थक गया था, वो इतना चढ़ के हेरमिट के पास मतलब गया था, वहां पे उसने इतना सारा काम भी किया था, सो राजा भी थक गया था और वो राजा जो था वो फर्श पर ही लेट गया और पूरी रात सो गया. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब जब राजा उठा तब उसको मतलब उसको याद करने में थोड़ा टाइम लग गया कि मैं कहाँ पे हूँ और ये जो मतलब बियर्डेड मैन है ये मेरे पास यहाँ पे कौन लेटा हुआ है. मतलब जब वो सुबह उठा तो उसको थोड़ा सा टाइम लग गया ये सारी चीजें रिमेम्बर करने के लिए कि मैं यहाँ पे कहाँ हूँ और ये जो मतलब ये जो वाउंडेड मैन है ये मेरे पास कौन लेटा है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. अब जो bearded man था उसने उसको क्या बोला, उसने उसको weak voice में बड़ी ही कमजोर सी आवाज में उसने बोला कि मुझे माफ कर दो. When he saw the king was awake, जब उसने ये देखा कि राजा उठ गया है तो जो वो wounded man था उसने राजा से माफी मांगी. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. अब राजा ने कहा कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और कुछ ऐसा है भी नहीं है कि मैं आपको माफ करूँ, तो आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो. You do not know me, but I know you. अब जो वो जख्मी इंसान था उसने क्या बोला कि आप मुझे जानते नहीं हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. अब उस आदमी ने क्या बोला कि मैं क्या हूँ, कि मैं आपका एक वो दुश्मन हूँ जिसने कि आपको मारने की कसम खाई थी. क्यों? Because you put my brother to death and seized my property. अब उसने बोला कि आपने मेरे भाई को मार दिया था और जो मेरी प्रॉपर्टी थी उसको भी आपने सीज कर दिया था. सीज क्या होता है? टुक बाय फोर्स, जब आप जबरदस्ती फोर्सफुली किसी से कोई चीज ले लेते हो, दैट इज कॉल्ड सीज्ड. तब उसने क्या बोला, वो जो वाउंडेड मैन था उसने क्या बोला कि मैं आपका क्या हूँ, एक एनिमी हूँ. क्यों हूँ एनिमी? बिकॉज आपने मेरे भाई को मार दिया और मेरी प्रॉपर्टी भी आपने फोर्सफुली मुझसे ले ली. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way at home. अब उसने बोला कि मुझे पता था कि आप हेरमिट के पास अकेले ही गए हो, तो इसलिए मैंने ये अपना माइंड बनाया था कि मैं आपको क्या कर दूंगा, मार दूंगा. But the day passed and you did not return. लेकिन क्या हुआ कि पूरा दिन बीत गया, आप वापिस नहीं आए. So I left my hiding place. इसलिए मैंने क्या किया कि जो हाइडिंग प्लेस थी जहां पर मैं छिपा हुआ था, मैं वहां से बाहर आ गया. एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी. और जब मैं आपके बॉडीगार्ड के सामने आया तो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझ पे हमला कर दिया और मुझे ये सारे घाव दिए. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. अब उसने कहा कि मैं वहां से तो बच निकला, लेकिन अगर आप मेरे जख्मों पे मरहम पट्टी नहीं करते मैं नहीं बचता. I wish to kill you and you have saved my life. उसने बोला कि मैंने तो आपको मारने की कसम खाई थी लेकिन आपने मेरी जान बचाई है. Now if I live, I will serve you as your मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. उसने ये बोला कि अगर मैं बच जाऊंगा तो मैं आपको एज अ मोस्ट फेथफुल सर्वेंट आपको सर्व करूंगा. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. और अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को भी बोलूंगा कि आप भी किंग को क्या करो, फेथफुली सर्व करो. फॉरगिव मी. और वो इस प्रकार से राजा से माफी मांगता है. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. अब जो राजा था वो बहुत ही खुश था. क्यों? क्योंकि उसको मतलब इतने बड़े दुश्मन से उसकी पीस हो गई थी, उसकी शांति हो गई थी बड़े आसानी से. ठीक है, तो राजा जो था वो हैप्पी था. एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. और उसने एक दुश्मन से अपना क्या बना लिया था, उसको दोस्त. तो इसलिए राजा बहुत खुश था. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. अब राजा ने सिर्फ उसको माफी ही नहीं दी, सिर्फ उसको क्षमा ही नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया कि अपने क्या कहा उसने कि he would send his servants and his own doctor to look after him. अब राजा ने बोला कि मैं अपने खुद से सर्वेंट्स भेजूंगा आपको लुक आफ्टर करने के लिए और डॉक्टर्स भी भेजूंगा आपको केयर करने के लिए. एंड ही promised to give back the man his property. और राजा ने ये प्रॉमिस किया कि जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने आपकी सीज की है मैं आपकी प्रॉपर्टी रिटर्न कर दूंगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. अब जो wounded man था उसको वहीं पे छोड़ के राजा बाहर आया
और वो कहाँ गया, हट में गया, वो जो हेरमिट की हट थी वहां पे गया, किसको ढूंढने के लिए, हेरमिट को देखने के लिए। बिफोर गोइंग अवे he wished once more to get answers to his questions। अब वहां से जाने से पहले राजा ने सोचा कि काश मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before। अब जो hermit था वो क्या कर रहा था कि अपने घुटनों के बल वो बैठा हुआ था और वो बीज लगा रहा था अपनी उन बेड्स में, गार्डन बेड्स में, जो कि उन्होंने पहले दिन खोदी थी। The king went up to the hermit and said, For the last time I beg you to answer my questions, wise man। अब राजा ने क्या किया, राजा जो थे वो हेरमिट के पास गया और कहा कि फॉर द लास्ट टाइम मैं आपसे बेग करता हूं कि मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर मुझे दे दो। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। अब हेरमिट ने कहा कि आपको तो आपके क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मिल गए हैं, राइट। वो जो अभी भी वो क्या कर रहे थे कि वो नीज के बल बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे, वो जो राजा उनके पास सामने जो खड़ा था उनको देखकर हेरमिट ने क्या कहा कि आपको अपने क्वेश्चन के आंसर जो है वो ऑलरेडी मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। अब उसने बोला, हेरमिट ने, कि आपका क्या मतलब है, मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर कैसे मिले, राइट। डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हेरमिट। राजा ने कहा कि राजा ने रिप्लाई किया कि आपने नहीं देखा। इफ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away। अब हेरमिट ने क्या कहा कि अब कल जो आपने मुझ पे पिटी की थी, मुझ पे आपने कल जो दया करके मुझे हेल्प की थी, वो जो क्यारियां थी, फूलों की जो फ्लावर बेड्स थी, आपने क्या किया था, आपने मेरी वीकनेस पे दया करके जो मेरी हेल्प की थी, मेरी क्यारियों को जो डग किया था, ठीक है, अगर आप नहीं करते, यू वुड हैव गॉन अवे, आप वहां से चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विद मी। अगर आप कल चले गए होते तो वो जो आदमी था, जो आपका एनिमी था, वो क्या करता, वो आप पे अटैक करता, राइट, आप पे हमला करता। तो फिर आप उस टाइम सोचते कि काश मैंने अभी तक वहीं पर ही स्टे किया होता, कहाँ पे, हेरमिट की हट में। तो ये सब बातें राजा को कौन बोल रहे हैं, हेरमिट बता रहे हैं। So the most important time was when you were digging the beds। अब हेरमिट ने कहा कि वो जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो था वो क्या था, जब आप उन फ्लावर बेड्स को डिग कर रहे थे, राइट। वो हेरमिट ने उसको यही बताया कि कल आप अगर यहाँ से चले गए होते तो वो जो वाउंडेड मैन था वो आप पे अटैक करता, तो आप विश करते कि काश मैं आज वहीं पे रुक जाता, सो दैट कि ये आदमी मुझ पे हमला नहीं करता, क्योंकि वो तो राजा का वेट कर रहा था, राइट। तो हेरमिट ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था कि जब आप मेरे पास यहाँ पे फ्लावर बेड्स खोद रहे थे, वो टाइम जो था वो सबसे ज्यादा जरूरी था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। अब हेरमिट ने कहा कि वो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आदमी था वो कौन था, वो मैन था। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपने किया वो क्या किया कि मेरे लिए जो आपने अच्छा किया, मेरे हेल्प करके, राइट, मेरी हेल्प करके जो आपने काम किया वो सबसे इम्पोर्टेंट था, और जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो कौन था, मैन था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him। अब उसने बोला कि उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास यहाँ पे दौड़ता हुआ आया, तब सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम था वो क्या था कि जिस टाइम आप उसकी केयर कर रहे थे, उस टाइम वो जो काम था वो सबसे ज्यादा जरूरी था। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you। हेरमिट ने कहा कि अगर तुम उसकी जो घाव थे, अगर तुम उस पे ड्रेसिंग नहीं करते तो वो जो आदमी था वो बिना आपसे मतलब शांति स्थापित किए बिना ही वो क्या होता, मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। सो हेरमिट ने कहा कि वो जो आदमी था उस टाइम वो सबसे इम्पोर्टेंट था, और जो आपने काम किया उस टाइम वो सबसे ज्यादा जरूरी था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। अब हेरमिट ने कहा कि आप ये याद रखो कि जो सबसे ज्यादा जो जरूरी जो टाइम है, सबसे ज्यादा जो जरूरी एक टाइम है वो क्या है, नाउ, मतलब जो प्रेजेंट का जो टाइम है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम we have
एनी पार्ट टू एक्ट, क्योंकि उसने बोला कि सबसे ज्यादा जो जरूरी जो टाइम है वो प्रेजेंट का टाइम है, वो अभी नाउ अभी वाला जो टाइम है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय हमारे पास पावर होती है कुछ एक्ट करने की, कुछ काम करने की, क्योंकि ना तो हमारा जो पास्ट हो गया होता है तो हमारा उस पर कोई भी जोर नहीं है, और ना ही हमारे आने वाले जो फ्यूचर है उस पर भी हमारा कोई जोर नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट का टाइम है, जो अभी का टाइम जो चल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम उसको एक्ट करने की हमारे पास पावर होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट। अब हेडमिट ने कहा कि जो सबसे ज्यादा जो पर्सन है, सबसे ज्यादा जो जरूरी आपके लिए पर्सन है वो कौन है, जो आपको आपके साथ इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जो आपके पास जो पर्सन होता है, जो आपके साथ जो पर्सन होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनुअल एल्स, और हम किसके साथ आगे मिलेंगे फ्यूचर में ये किसी को भी पता नहीं होता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे जो ज्यादा जरूरी जो काम है वो क्या है कि हम उस आदमी के साथ क्या कर रहे हैं, उस आदमी के साथ अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, ये सारा प्रेजेंट में है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें इस वर्ल्ड में इसी पर्पज के लिए भेजा है कि आप लोगों के साथ क्या करो, अच्छा करो। सो दिस वाज द explanation of this second part. Now let's move on to questions. Why did the king help the wounded man? अब जो राजा था उसने wounded man की हेल्प क्यों की थी? The king felt pity for the wounded man and cleaned and bandaged his wounds. क्यों की थी उसने हेल्प? क्योंकि राजा को उसके प्रति दया आ गई थी, राइट? Who was the wounded man? वो जो wounded man था वो कौन था? The wounded man was the king's enemy who had sworn revenge against him. जो wounded man था वो राजा का दुश्मन था जिसने की कसम खाई थी कि वो राजा से अपना बदला लेगा। Why did the wounded man ask for forgiveness? अब जो wounded man था उसने forgiveness के लिए क्यों राजा को बोला था? He asked for forgiveness because the king had saved his life and treated him kindly. क्योंकि राजा ने उसकी जान बचाई थी, उसको काइंडली ट्रीट किया था, इसलिए जो वाउंडेड मैन था वो राजा से माफी मांग रहा था। What did the king promise the wounded man? अब राजा ने क्या प्रॉमिस किया था उस वाउंडेड मैन के साथ? The king promised to forgive him and return his property. राजा ने उसको किंग ने उसको माफ करने का प्रॉमिस किया था और उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो उसको रिटर्न करने का प्रॉमिस किया था। What answers did the king get to his 3 questions? अब जो राजा था उसके वो कौन से आंसर्स थे जो उसको मिले थे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ। अब राजा को जो सबसे पहला उसको जो आंसर मिला वो ये था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम है वो क्या है? नाउ, मीन्स जो प्रेजेंट टाइम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द वन यू आर विद एट दैट मोमेंट। अब सेकंड जो आंसर था वो ये था कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है जो कि आप प्रेजेंट में जो पर्सन आपके साथ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू गुड टू दैट पर्सन। और जो थर्ड जो आंसर था वो ये था कि आप उस पर्सन के साथ अच्छा कर रहे हो। सो दिस वाज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हु वाज द वाउंडेड मैन? वाउंडेड मैन जो था वो कौन था? अ सोल्जर, द किंग्स एनिमी, मर्चेंट और हंटर। सो ही वाज द किंग्स एनिमी। What did the king do for the wounded man? अब राजा ने wounded man से क्या What did the king do for the wounded man? राजा ने क्या किया था wounded man के लिए? Gave him money, sent him to prison, bandaged his wounds और left him alone. तो राजा ने क्या किया था कि उसकी जो जख्म थे उनमें बैंडेज की थी। So third option is bandaged his wounds is correct. Why had the wounded man wanted to kill the king? अब जो wounded man था वो राजा को क्यों मारना चाहता था? The king had punished him. The king had taken away his property and executed his brother. The king had insulted him. The king had defeated him in battle. So right option is B, क्योंकि जो king था उसने उसके भाई को मारा था और उसकी प्रॉपर्टी सारी सीज कर दी थी। So option B is correct. What did the wounded man ask from the king? वो जो wounded man था उसने राजा से क्या मांगा? So मनी, लैंड, फॉरगिवनेस और फूड। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो फॉरगिवनेस है। सो दिस इज राइट ऑप्शन।
अकॉर्डिंग टू द hermit, what is the most important time? hermit के अकॉर्डिंग जो सबसे important जो टाइम होता है वो कौन सा होता है? tomorrow, yesterday, the previous moment or next year? So third option, the present moment is correct. Who is the most important person? So the king's advisor, the person you are with at that moment, your relatives, your friends. So B option, the person you are with at that moment is the right answer. What is the most important thing to do? So earn money, win battle, do good to others, travel to the world. So do good to others. ठीक है, सबसे जो ज्यादा जो जरूरी जो ज्यादा सबसे जरूरी बात है वो क्या है कि आपको दूसरों के साथ क्या करना है, अच्छा करना है. हाउ डिड द वाउंडेड मैन्स एटीट्यूड टुवार्ड्स द किंग चेंज? अब जो वाउंडेड मैन था उसका एटीट्यूड राजा के प्रति चेंज कैसे हुआ था? ही हेटेड हिम मोर, ही रिमेन्ड एंग्री, he became his friend and supported, he ignored him. So third option, he became his friend, वो उसका फ्रेंड बन गया था, उसका सपोर्टर बन गया था. So इसलिए जो किंग का जो एटीट्यूड था वो उसके प्रति चेंज हो गया था. What did the king promise the wounded man? अब जो राजा था उसने क्या प्रॉमिस किया था wounded man से? A reward, a new house, forgiveness and the return of his property, a government job. So option C, forgiveness and return of his property is the right option. Who gave the answers to the king's 3 questions? So जो king के जो 3 questions थे उसके answers किसने दिए थे? The ministers, the soldiers, the hermit or the wounded man. So the hermit ने उसके right answers दिए थे. So let's move on to the fill in the blanks. The king bandages the dash man's bounds. जो king था, king ने किसके wounds पे bandage लगाई थी? Wounded man, right? The wounded man was the king's dash, so enemy. The king gave the wounded man some dash to drink. तो राजा ने क्या किया था? wounded man को क्या दिया था पीने के लिए? water. The wounded man asked the king for dash. जो wounded man था उसने राजा से क्या मांगी थी? forgiveness, right? The king promised to return the man's dash. तो राजा ने क्या किया था कि वो क्या रिटर्न करेगा? प्रॉपर्टी, right? According to the hermit, the most important time is dash. So the most important time is now, means present. The most important person is the one you are dash with. So together. मतलब जो most important जो person है वो कौन होता है? जो कि आपके साथ इस टाइम होता है, that is the most important person. The most important thing is to do dash to others. So good. The wounded man promised to serve the king as his most faithful servant. So wounded जो man था उसने क्या किया था? उसने promise किया था कि मैं आपको as a faithful servant आपको serve करूंगा. The hermit lived in a small dash in the forest. So hermit कहाँ रहता था? एक hut में रहता था. So students, this was your complete chapter 3 questions. So I hope you understood it well. Thank you.